अब हम ध्यान आकर्षण ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ। Madam, I call the attention of the Minister of Health and Family Welfare to the following matter of urgent public importance, and I request that he make a statement thereon. Situation arising out of the spread of encephalitis and brain fever in the various parts of the country, particularly in Uttar Pradesh, West Bengal, and Bihar, and steps taken by the government in this regard. Honorable Minister. Madam Speaker, acute encephalitis syndrome, including Japanese encephalitis, is a major public health challenge. Acute encephalitis syndrome अब ये बहुत ही बड़ा टेक्निकल नाम है और इन टेक्निकल नामों का अनुवाद करना पता नहीं किस वायरस क्या क्या बन जाएगा। आप बोलिए। इसका हिंदी नाम बहुत सरल है, दिमागी बुखार या मस्तिष्क ज्वर। कोई दिक्कत नहीं है, दिमागी बुखार। बहरहाल शुरू अंग्रेजी से होगी तो उत्तर भी अंग्रेजी में होगा। दोनों बैठ जाइए। शैलेंद्र कुमार जी, शुरू ही अंग्रेजी से हुई तो मैं कैसे हिंदी में जाऊँ? माननीय मंत्री महोदय। अच्छा, आप सुनिए, आप इसको विवादित मत बनाएं। हिंदी यहाँ ट्रांसलेशन सब भाषाओं में है। अब और खास कर के जो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बिल्कुल ही टेक्निकल है और उस टेक्निकल में ये विशेष रूप से ये बीमारी है, खास तौर से इसमें acute encephalitis syndrome is characterized by high fever, altered consciousness and convulsions, mostly in children between 15 years. It is estimated that about 25% of the affected children die, and among those who survive, about 30 to 40% suffer from physical and mental impairment. AES, that is acute encephalitis syndrome, is a complex problem and there are various causative agents including JE and enteroviruses. Brain fever due to Japanese encephalitis is caused by a virus and is transmitted through mosquitoes. The main reservoir of the JE virus are pigs and water birds, and in its natural cycle, virus is maintained in these animals. First major outbreak of Japanese encephalitis was reported in 1973 from Bardhaman district of West Bengal. Later, the most serious outbreaks were reported from eastern part of Uttar Pradesh, particularly in the districts of Gorakhpur and Basti divisions in 1978. AEs have now been reported from 171 districts in 19 states. During 2011, 7,813 acute encephalitis syndrome cases and 1,133 deaths have been reported in the country till 27 December. The major states affected by AEs are Uttar Pradesh, which reported 3,474 cases and 575 deaths, followed by Assam with 1,391 cases and 250 deaths, West Bengal with 714 cases and 40 deaths, and Bihar with 821 cases and 197 deaths. Presently, there is a vaccine only for prevention of Japanese encephalitis. For the rest of AEs cases, there is no vaccine for prevention. JE vaccination has been introduced by Government of India in a phased manner in the affected districts since 2006. Prevalence of JEs has been declining. For example, in Uttar Pradesh, the JE positivity rate in AEs cases has been declined from 36% in 2004
to 6.4% in 2011. Another key cause of AIDS is enteroviruses, which are transmitted primarily through use of unsafe drinking water. I personally visited Gorakhpur recently and had discussion with experts, officials and local people, and it was evident to me that AIDS is not only a medical problem, but a much broader and complex development issue and linked with various social determinants of health, including safe drinking water, basic sanitation, personal hygiene, and nutrition. To effectively combat the problem, it is therefore essential to evolve a multi-pronged strategy encompassing prevention, case management, and rehabilitation measures. The strategy can be successfully implemented only with the active engagement of various ministries like Ministries of Drinking Water and Sanitation, Social Justice and Empowerment, Rural Development, Urban Development, Women and Child Development, and the active cooperation of and involvement by the state governments. Appreciating this fact, Honorable Prime Minister has constituted a group of ministers on 4th November 2011 to develop a comprehensive multi-sectoral strategy. 3 meetings of group of ministers have already taken place. That's on 21st November, 25th November, and 9th of December 2011 respectively. अध्यक्ष योगी महोदय, आदित्यनाथ जी, अभी योगी आदित्यनाथ जी की बारी है। आपसे अभी उनकी बारी, ध्यान आकर्षण चाहिए। अभी अध्यक्ष जी, कॉलिंग अटेंशन है। अभी उनकी बारी है, ध्यान आकर्षण चाहिए। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने पिछली बार की तरह ही फिर ना यहाँ पर एक लिखित वक्तव्य जो मंत्रालय के अधिकारियों ने दिया होगा वही पढ़ करके सुना दिया है। और ये लिखित वक्तव्य मैं पिछले 13 वर्षों से इस सदन में सुन रहा हूँ। महोदय, जो इंसेफ्लाइटिस है यानी मस्तिष्क ज्वर, जो दिमागी बुखार है, इस देश में 1956 में पहली बार आया था और 1978 में पहली बार गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसके मामले देखने को मिले थे। 1998 से लेकर के लगातार कोई सत्र ऐसा नहीं जब मैंने इस सदन का और सरकार का ध्यान किसी न किसी नियम के तहत आकर्षित न किया हो। लेकिन मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पिछले 33 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों की लगातार हो रही मौतें आखिर क्या प्रदर्शित करती हैं? क्या स्वस्थ जीवन जीने की आज़ादी पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूमों को नहीं, साल दर साल हो रही मासूम बच्चों की मौतें क्या प्रदेश और केंद्र सरकारों की उपेक्षा को प्रदर्शित नहीं करती है? 33 वर्षों में जो गैर सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार पिछले 33 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में 1 लाख से अधिक मौतें हुई हैं और इतने ही शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हुए हैं। पिछले वर्ष भी मैंने 31 अगस्त को इसी सदन में एक कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया था और माननीय अडवाणी जी ने भी उस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सरकार से इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा था। लेकिन अत्यंत दुखद है कि जो आश्वासन 31 अगस्त 2010 को इसी सदन में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने दिए थे, आज तक उस पर अमल नहीं हो पाया। पिछले वर्ष जो इसी मंत्रालय ने मुझे पत्र भेजा था उसके अनुसार अगर आंकड़े मैं आपके सामने रखूं, 2005 में 6061 मरीज
दिमागी बुखार के भर्ती हुए थे, जिसमें से 1500 की मौतें हुई थी। सन 2006 में 2320 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 528 की मौतें हुई। वर्ष 2007 में 3024 मरीज भर्ती हुए, जिसमें 995 की मौत हुई। 2008 में 3015 मरीज भर्ती हुए, जिसमें से 684 की मौत हुई। वर्ष 2009 में 784 बच्चों की मौत हुई। और मेरे पास अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज के आंकड़े हैं, जिसमें वर्ष 2010 में 3503 मरीज भर्ती हुए, जिसमें 514 की मौत हुई, तथा इस वर्ष अब तक 3275 मरीज भर्ती हो चुके हैं और कल तक 624 बच्चों की मौत अकेले ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में हुई है। लगातार मौत हो रही है, मौत का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। लगातार 7 जिलों के आंकड़े में बता रहा हूं कि 625 मौतें कल तक अकेले ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में होती हैं, और ये मौतें तब हो रही हैं जबकि पिछले 13 वर्षों से मैं लगातार इस सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इस बीमारी, इस महामारी के बारे में लगातार मैं आवाज उठाता रहा हूं और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। इस महामारी को इसको महामारी घोषित किया जाए, इसके उन्मूलन के लिए किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की जाए। महोदय, मेरे इस सदन में उठाने के बाद एनडीए सरकार में कुछ कार्रवाई प्रारंभ हुई थी और उसका परिणाम था कि 2004-05 के बाद वहां पर वैक्सीनेशन प्रारंभ हुए। वैक्सीनेशन के परिणाम सामने आए, जेई के केसेस कम हुए हैं, 36% से वो घट करके आज 6% पर आ गया है। लेकिन जहां जेई से होने वाली मौतें कम हुई हैं, वहीं एंट्रोवायरस से होने वाली मौतें बढ़ी हैं, लगातार बढ़ी हैं। मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग इस भंवर जाल में फंसे हुए हैं कि वह जेई है, वी है या एईएस है, और लगातार ये मौतें वहां पर होती जा रही हैं। सरकार ने 3 बार लगने वाले टीकों को केवल 1 बार 2 बार लगा करके छोड़ दिया। टीकाकरण भी मई जून में किया गया। ये बीमारी जो अक्सर होती थी, ये इस बार तो देखा जा रहा है पूरे साल भर मौतें हो रही हैं। अक्सर हम लोग देखते थे कि 15 नवंबर के बाद मौतें नहीं होती थी, लेकिन मैडम आज भी वहां मौतें हो रही हैं, लगातार मौतें हो रही हैं। लगातार 3-4 मौतें रोज हो रही हैं। इससे पहले जब जेई के केसेस ज्यादा होते थे तो उस समय केवल 15 नवंबर के बाद मौतें होनी बंद हो जाती थी, इंसेफ्लाइटिस के मरीज आने बंद हो जाते थे। लेकिन टीकाकरण जो फरवरी मार्च में होने थे, टीकाकरण जब भी हुए तो राज्य सरकार ने उन टीकाकरण कराया मई जून में। बीमारी के केसेस आने प्रारंभ होते हैं 15 जून के बाद से, जुलाई प्रारंभ होने के बाद से, बरसात होने के बाद से। टीकों को एक्टिवेट होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, लेकिन टीकाकरण भी ईमानदारी से नहीं कराए गए। और जिन टीकों को 3 बार कराया जाना चाहिए था, उसको 1 बार करा करके सरकार ने अपनी तीसरी कर दी। टीके के जो निर्माता कंपनी है स्वयं कहती है, उसके रेपर में भी लिखा गया है कि इसको कम से कम 2 या 3 बार लगाना चाहिए। क्या सरकार का यह जो रवैया है कि एक बार टीकाकरण करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाएं, तो क्या इस महामारी से मुंह मोड़ने जैसा नहीं है? क्या सरकार इस बीमारी को केवल उपचार मात्र ही चाहती है? क्या बचाव व उन्मूलन उसकी प्राथमिकता में नहीं होगा? 33 वर्ष बीत चुके हैं जब आज तक सरकार ये पता नहीं लगा पाई है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम किस वायरस का शिकार हो रहा है। वो जेई है, वी है या एईएस है। अगर सरकार के पास एक ठोस दीर्घकालीन राष्ट्रीय इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन कार्यक्रम होता तो संभवतः बीमारी ऐसा भयावह दृश्य हम सबके सम्मुख प्रस्तुत नहीं करती। ऐसा है कि बीमारी इस देश में तमिलनाडु में सन 1956 में आई, उसके उपरांत आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल होते हुए 1978 में इसने पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैर फैलाए थे। अगर इस महामारी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में रोका होता तो आज उत्तर प्रदेश के 35 जिले इससे प्रभावित नहीं होते। और जैसे कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि देश के 19 राज्य
और 171 जिले से प्रभावित हैं। लेकिन अगर गैर सरकारी उसको देखा जाए तो 26 राज्य इस बीमारी से कम या ज्यादा रूप में प्रभावित हैं और लगातार ये बीमारी मासूम बच्चों को निकलती जा रही है। उन्मूलन की बात तो दूर, मुझे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जाने का अक्सर अवसर मिलता है उन मासूम बच्चों को देखने के लिए और इस बीमारी से पीड़ित बच्चों का हालचाल जानने के लिए। और जब मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जाता हूं तो मैंने देखा कि इस बार भी और पिछली बार भी वहां पर दवा के अभाव में मरे हैं। मैडम, ये चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकारें अपनी प्राथमिकता गिनाती है कि हम गरीबों के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, दलितों की बात करेंगे। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बीमारी से मरने वाले 99% बच्चे, 95% बच्चे जो मरने वाले बच्चे हैं वे बच्चे दलित परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं, किसान परिवार के हैं। ये सरकार उन दलितों के बच्चों को, उन गरीबों और किसानों के बच्चों को मरने से नहीं रोक पाई है। इस सरकार के वास्तविक चेहरे को प्रदर्शित करता है, प्रदेश सरकार के वास्तविक चेहरे को प्रदर्शित करता है कि एक तरफ इस देश का गरीब, इस देश का दलित, इस देश का जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है वह दवा के अभाव में मर रहा है, लगातार दम तोड़ रहा है। केंद्र सरकार के मंत्री वहां गए थे, हमको सूचना नहीं, लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री को तो वहां जाने की फुर्सत नहीं हुई। मुख्यमंत्री की बात तो दूर, प्रदेश सरकार का कोई मंत्री वहां नहीं पहुंचा है। और इसीलिए महोदय, दवा के अभाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम दम तोड़ा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में लगभग 5,000 करोड़ रुपए वहां पर उत्तर प्रदेश में घोटाला होता है, लेकिन एनआरएचएम के दवा का अगर एक पार्ट उस दवा के उपचार के लिए वहां के सीएससी, वहां के पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के जीर्णोद्धार और उसके पुनरुद्धार के लिए खर्च किया गया होता तो दवा के अभाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम नहीं मरता। लेकिन लगातार मौतें होती जा रही हैं। और इसीलिए एक तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम दवा के अभाव में दम तोड़ा है, एक तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम लगातार दवा के अभाव में दम तोड़ा है, और दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए का दवा का घोटाला, एनआरएचएम का दवा का घोटाला उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। पूरी सरकारों की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करता है। और इसीलिए मुझे महोदय सरकार की नीति पर भी और उसकी नीति पर भी हंसी आती है। माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दाखिल हुई थी 2007 में, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को आदेशित किया था कि इंसेफ्लाइटिस के पूर्ण उन्मूलन के लिए, इसके बचाव और उन्मूलन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेई को गोरखपुर में स्थापित किया जाए। लेकिन सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेई को एसजीपीजीआई लखनऊ में स्थापित किया। सरकार का एक कर्तव्य ऐसे ही है, जैसे कुआं सरकार खोदती तब है जब प्यास से लोग मरने लगते हैं, और वह भी वहां जहां प्यास से लोग मर रहे हैं वहां नहीं। जब 75 से 80% केसेस इंसेफ्लाइटिस के मरीजों का गोरखपुर और उसे सटे हुए 5-7 जिलों में हैं, बिहार और नेपाल से सटे हुए जिलों में हैं, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेई को लखनऊ में खोलने का औचित्य क्या था? जिन 7 बिंदुओं पर इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए कार्य होना था वह किसी भी स्थिति में लखनऊ में संभव नहीं, क्योंकि 75 से 80% रोगी तो गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों से हैं, नेपाल और बिहार से हैं। जो गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर एनडीए सरकार की पहल के बाद 2007 में स्थापित हो पाया, वह भी संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है। वह यह बताने में अभी भी सक्षम नहीं है कि कौन सा वायरस है जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम असमय काल के गाल में समा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 27 सितंबर 2007 को स्पष्ट निर्देश दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानक का एक शोध केंद्र गोरखपुर में स्थापित किया जाए, जिसे केंद्र तथा प्रदेश सरकारें नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करती रहे। प्रदेश और केंद्र सरकारें सीधे सीधे उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रही हैं। आज दोनों सरकारों की उपेक्षा के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की महामारी से
वहां का आम मासूम त्रस्त है, लेकिन सरकार आज भी जेई, वायरल इंसेफेलाइटिस या एईएस के भंवर जाल में फंसी है। मौत के आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मैडम, स्वाइन फ्लू और वर्ल्ड फ्लू के मामले में सरकार ने अत्यंत सतर्कता बरती थी। इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए, लेकिन जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी घातक महामारी के लिए जन जागरण अभियान क्यों नहीं? जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक को अगर हम देखें तो वर्ल्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू से मृत्यु दर मात्र 2% है और इंसेफेलाइटिस से मृत्यु दर 20% से 30% है। इंसेफेलाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम हुए हजारों मासूम बच्चों के पुनर्वास के लिए स्वीकृत रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिस रिहैबिलिटेशन सेंटर की घोषणा 2009 में इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने मेरे कॉलिंग अटेंशन पर की थी, अब तक वो गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है। माननीय सदन, यहां इसी सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि इंसेफेलाइटिस के उपचार एवं उन्मूलन के लिए भारत सरकार पूरी मदद करेगी, तब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित करेगी। संसद में भी दिया गया जो आश्वासन सरकार का है, मैडम, वो केवल आश्वासन मात्र बनकर के रह गया है। आज हम लोगों के, यानी हम लोग जिन मुद्दों को लेकर के यहां पर वक्तव्य रखते हैं, एक विश्वास के साथ रखते हैं कि कम से कम सदन में रखा गया वक्तव्य सरकार उसमें किसी बिना किसी पूर्वाग्रह के उन पर अमल करेगी और कार्रवाई करेगी, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हो पाया है। केंद्र से जाने वाली टीम के लिए मैडम अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र से जो टीमें जाती हैं उनके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम एक गिनी पिग्स बन गया है, एक प्रयोगशाला बन गया है। उनके लिए वहां के बच्चे प्रयोग करने के एक नए माध्यम बन गए हैं। कब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ होती रहेगी? कब तक उनके साथ ये प्रयोग होता रहेगा? 33 वर्षों से लगातार मर रहा है। और इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ आबादी के बीच में अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एकमात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज है बीआरडी मेडिकल कॉलेज। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि 5 करोड़ की उस आबादी के बीच में क्या बीआरडी मेडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए, उसको एम्स की तर्ज पर विकसित करने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठाएगी जो इस प्रकार के, क्योंकि वह तराई का क्षेत्र है, वहां पर तमाम इस प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से, मैडम पूरी दुनिया के अंदर कहीं आपको पोलियो नहीं मिलेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में पोलियो है, वहां पर घेगा है, वहां पर फाइलेरिया है, वहां पर मलेरिया है, वहां पर डेंगू है, वहां पर कालाजार है, वहां पर ये तमाम प्रकार की विषाणु जनित बीमारियां हैं, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा सेंटर नहीं जहां पर लोग उपचार करा सके। और अकेले 5 करोड़ की आबादी के बीच में बीआरडी मेडिकल कॉलेज एकमात्र मेडिकल कॉलेज है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि अगर एम्स की तर्ज पर अन्य केंद्रीय चिकित्सा संस्थान देश के अन्य भागों में खुल सकते हैं तो 5 करोड़ की आबादी के बीच में गोरखपुर में क्यों नहीं? क्या सरकार इस संबंध में कदम उठाएगी कि क्या सरकार के लिए केवल एक राजनीतिक मुद्दा ये मात्र है? वहां के मासूम बच्चों को क्या भारत सरकार अपने गणराज्य के अधीन नहीं समझती है कि जो उनको मरते हुए देखना चाहती है? लगातार मौत पर मौत होती जा रही है, हम लोग लगातार वहां के आंदोलन को झेल रहे हैं और सरकार मौन बैठी हुई है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, क्या सरकार एम्स की तर्ज पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज को विकसित करने के लिए क्या कोई घोषणा करेगी? नंबर 1। दूसरा, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो महामारी उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों में है, देश के, अगर माननीय मंत्री जी के ही वक्तव्यों को मैं मानूं कि देश के 71 जिले, उत्तर प्रदेश के 35 जिले और देश के 19 राज्यों में जो बीमारी कहर बरपा रही है, तो उसे मात्र राज्य का विषय आपने कैसे बांध लिया? आप गोरखपुर गए थे और आपने गोरखपुर में कहा था कि तो राज्य का विषय है, यानी मासूम मर रहे हैं, आप कहते हैं राज्य का विषय है। तो राज्य का विषय कैसे हो गया? जो बीमारी देश के 19 राज्यों में है, आप उसको राज्य का विषय कैसे मान रहे हैं? इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए क्या किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा करेगी? नंबर 3, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर में स्थापित वायरल रिसर्च सेंटर को उच्चीकृत करके वायरस की पहचान के लिए सही कारक का पता लगाने, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश को इस महामारी से बचाने के लिए किसी कार्य योजना की घोषणा सरकार करेगी?
नंबर 4, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। मैडम, इस बार वहां पर दवा के अभाव में वहां के मासूम मरे हैं, कोई उपचार की व्यवस्था नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, पूरे इंसेफ्लाइटिस के लिए मुफ्त में उपचार की व्यवस्था की गई थी, लेकिन पिछले वर्ष भी नहीं और इस वर्ष भी नहीं, कोई वहां पर दवा नहीं मिली बच्चों को। मां गरीब मरते रहे, मासूम बच्चे मरते रहे। एक तरफ हजारों करोड़ रुपए का एनआरएचएम का घोटाला, दूसरी तरफ मासूम दवा के भाव में मर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जो एनआरएचएम का जो राशि स्वीकृत हुई है उत्तर प्रदेश के लिए, उसका एक हिस्सा क्या इंसेफ्लाइटिस के उपचार एवं उन्मूलन पे क्या सरकार खर्च करेगी? नंबर 5, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेई गोरखपुर में स्थापित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? नंबर 6, इंसेफ्लाइटिस से बचाव एवं रोकथाम के लिए व्यापक जागरण अभियान, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू की तर्ज पर विज्ञापन, गोष्ठियां, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो लोगों को बचाव के उपाय सिखा सकें। आखिर ये जीओएम कब तक गठित करेंगे? सरकार कोई कार्यक्रम नहीं करने होते हैं तो सरकार उसके लिए कोई कमेटी गठित कर देती है, उसको जीओएम के नाम पर लटकाती रहती है। मासूम आज मर रहे हैं, आप जीओएम की बैठक जनवरी, दिसंबर, फरवरी में करके क्या करेंगे? आखिर सरकार घोषणा क्यों नहीं करती है? यह सच है कि तमाम मंत्रालयों को मिलकर के एक साथ कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, वो क्यों स्वास्थ्य मंत्रालय तक उसको सीमित नहीं रखा जा सकता उस बीमारी को आज तक? लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशन में वहां पर स्वस्थ पेयजल के लिए, वहां पर तमाम अन्य कार्यक्रमों के लिए जीओएम की बैठक अब तक कोई निर्णय क्यों नहीं ले पाई है? आप तो वहां पर अक्टूबर में गए थे और अक्टूबर से दिसंबर तक सरकार निर्णय नहीं ले पाई है। आखिर हम इसको सरकार की किस उदासीनता को क्या प्रदर्शित नहीं करता है? और इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इंसेफ्लाइटिस से बचाव एवं रोकथाम के लिए व्यापक जन जागरण की दिशा से सरकार क्या कदम उठा रही है? नंबर 6, 7, इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित क्षेत्रों में साफ सफाई तथा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति तथा छिड़काव के संबंध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? और नंबर 8, इंसेफ्लाइटिस से शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम हुए मासूम बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है? धन्यवाद। श्री रमेश बैस। अध्यक्ष महोदया, काफी लंबे समय से चर्चा के लिए यह प्रस्ताव सदन में रखा गया था। आज बहुत खुशी की बात है कि इस गंभीर मामले की चर्चा इस सत्र के आखिरी दिन हो रही है। माननीय सदस्य योगी जी ने इस बीमारी के बारे में कई बार इस सदन में मामला उठाए और उन्होंने काफी चिंता जाहिर की, लेकिन सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया इतना निराशाजनक है कि 1973 से हमारे देश में यह बीमारी आई और 4 नवंबर 2011 को मंत्रिमंडल बैठे। 38 साल में